So, okay, we are talking about character oriented classes, and this is the homework which I gave. So, खुशबू आपको ये काम करना है जब आप ये स्टार्ट करोगे. तो in previous class, I gave the idea how to read and write from or into a file, but just one characters. So ट्राई करना कि मल्टीपल लाइंस कैसे रीड करनी है. ये मुझे आज रात को करके दिखाना है. हाइबरनेट को थोड़ा सेट करना, इसमें 1-2 घंटा स्पेंड करो, और इस आयो क्लास का जो भी क्लास आयो पैकेज की जो क्लासेस की थी, एक क्लास है इसकी, इसको पढ़ो और फिर ये होमवर्क ट्राई करके आना. ठीक है, मुझे शाम ओके को सर। चाहिए 9 बजे के आसपास जब भी ओके क्लास ओके। होती है. ठीक है. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद रीडर एंड राइटर क्लासेस. तो आइडिया इज सिंपल दैट वी विल रीड एंड राइट इनटू अ फाइल. तो let's see first of all the file documentation. So first of all we will write a file. पहले एक राइट फाइल को राइट करेंगे, फिर उस नेक्स्ट एग्जांपल में उसको रीड करेंगे. सो इट्स अ क्लास. लेट्स सी. फाइल लेटर java doc. Okay, so this is its, you can say, class signature. Public class file letter extends outer output stream writer class. Okay, and convenience class for writing characters file, right? साफ साफ कह रहा है कि this is one of the convenience files which can help us to write into a file into characters. Character format टाइप कर सकते हो. और the constructors of this class assume that the default character encoding and the default byte buffer are sorry buffer byte buffer size are acceptable. तो जो भी आप इसमें डेटा पास करोगे एक्सेप्ट करेगा कि ये बफर हो सकते हैं. बफर समझते हो? बफर क्या होता है? जैसे हम कहते हैं वीडियो या साइट या कुछ भी बफर हो रहा है, मेमोरी में जा रहा है. बफर इज लाइक अ इनबिल्ट मेमोरी विच होल्ड्स योर डेटा. जैसे कहते हैं वीडियो बफर, जैसे यूट्यूब कोई बार लैग करता है तो घूमना शुरू कर देता है, तो क्या करता है, वीडियो बफर कर रहा होता है कि मेमोरी में लेके आ रहा होता है उतना कि उतना डेटा प्रोसेस कर सके, वो वीडियो उतनी चला सके. सो समथिंग सिमिलर हैपेंस इन मेमोरी एज वेल. जब भी हम कोई डेटा रीड एंड राइट करते हैं तो बीच में एक बफर मेमोरी होती है. तो ये उसको बताते हैं कि डिफॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग एंड डिफॉल्ट आर एक्सेप्टेबल. जो भी है वो आ रहा है हमारे पास. तो जो भी डेटा है वो एक्सेप्टेबल है, और जो बाइट पास कर रहे हैं वो भी इसमें पास हो जाएगी. फाइल लेटर इज मेंट फॉर राइटिंग स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स, and for writing streams of raw bytes consider using file output stream. ये हमने कल यूज किया था. तो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है, for writing streams of raw bytes consider using a file output stream, and if you want to write characters go for file letter. So इसमें characters हैं. People gets confused when they are learning this first time because everything looks like character, but when you talk about file input or output stream classes, they are meant for raw bytes or just byte, you can say. ठीक है, दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा. कैरेक्टर के लिए चाहिए फाइल लेटर, और ऐसे चाहिए स्ट्रीम्स में या फिर बाइट्स में तो फाइल आउटपुट और फाइल इनपुट क्लासेस. So that's it. It clearly says that this class will help us to write characters into a file. So let's write an example. Close src IO package. Let's create one class. Right click on the package, new Java class. Let's say file file letter test. Main method. So again we will pick this location where we are keeping all of our uh, projects and information. So yesterday we created this dummy file. Let's get one different file. So more or less things remain same. So at least I can pick one data from the file, this file, giving the path. Shubham, again we will do in 3 steps, right? पहला स्टेप क्या होगा? पाथ देना, है ना. हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे ना कल, बस वही फॉलो करना है. सो गिव द फाइल लोकेशन समथिंग. सो मैं इसको कहता हूँ test.txt. ओके, कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हो. नेक्स्ट, now we need to instantiate file writer class. So instantiate file writer class and
pass file path into its constructor. So simply create the instance of file writer uh, from IO, then its reference, then equals, then new file writer. Again, you guys can see we have almost five constructors. So we will go for third one, which takes string as a file path, and there it is done. So this is also done. What is next? Third step क्या था शुभम? Can you tell me? Third step क्या होगा? And of course exception throw करेगा तो we need to surround with try catch. हाँ सर, कैच एक्सेप्शन कैच करना था। Hmm. उसके बाद सर इसको ऑब्जेक्ट बना दिया फाइल हेड। सर इसको अब रीड करना है या राइट करना है? राइट, रीड या राइट, यही स्टेप्स होते हैं बस। तो 3 स्टेप्स में हम चीज़ें कंप्लीट करते हैं। ओके खुशबू, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने 3 स्टेप्स में फाइल के अंदर डेटा एंटर करना या फाइल से डेटा उठाना वो सीखा था, वही आज हम फिर कर रहे हैं। पर दिस टाइम वी आर यूजिंग कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस, यस्टरडे वी हैव यूज्ड बाइट ओरिएंटेड क्लासेस। 3 स्टेप्स हैं, इतना रट लो। किसी भी जगह जब आप आईओ पैकेज स्टार्ट करोगे दिक्कत नहीं होगी। अभी आईओ के हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी ऑपरेशन करोगे फाइल के समझ में आ जाएंगे। तीन ही स्टेज होते हैं। पहला हमें लोकेट करना है कहाँ हमारी फाइल पड़ी है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कौन सी क्लास यूज करनी है, और तीसरा स्टेप में फाइल रीड और राइट हो जाती है। ठीक है गाइस, ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप्स है किसी भी फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए। कल को आपको बोल दे कोई पीडीएफ में राइट करना है तो उसके थोड़े से स्टेप बढ़ जाएंगे, पर आइडिया ये होगा, पहले आपको लोकेशन चाहिए, फिर आपको क्लासेस डिटरमाइन करनी है, और थर्ड स्टेप में रीड और राइट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। थोड़ी सी क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी जब कॉम्प्लेक्स चीजें करोगे, जैसे मैंने बताया पीडीएफ। अब पीडीएफ ऐसे राइट नहीं हो जाती, पीडीएफ में बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें रोज एंड कॉलम्स मेंटेन करने पड़ते हैं। सेम एक्सेल फाइल में भी है, उसमें भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो उसके हमको ग्रिड बनानी पड़ती है, GRID ग्रिड। फिर वहां पर सेल की एंट्री होती है, जैसे सेल्स बनते हैं ना उस एक्सेल फाइल में, तो उन सेल के हिसाब से एंट्री बनती है, तो हम कई बार लूप यूज करते हैं और हर एक सेल में डेटा एंटर करते जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पर अगर आपको ये आईओ पैकेज समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। बस क्लासेस ऐड हो रही है, क्लासेस का नाम पढ़ो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, कौन सा मेथड यूज करना है उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। तो अभी हम यूज करने वाले हैं फाइल राइटर डॉट राइट। राइट ही मेथड है। और देखो शुभम, देखो ना यहाँ पर इंट के अलावा एक मेथड और है, स्ट्रिंग, है ना। यस सर, अब हम यस मोर सर। देन वन कैरेक्टर पास कर सकते हैं, तो हम पूरी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो पहले इंट सी यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग सी में क्या करते हैं, मैं अभी सिर्फ वन पास कर दे रहा हूँ राइट में। अरे ज्यादा चला गया, सिर्फ मैंने वन पास कर दिया। क्या बोलते हो, वन की जगह क्या प्रिंट होगा, वन या कुछ और? हाँ बताओ, कुछ और पास होगा, क्या होगा इसके अंदर? ट्राई करें, रन एज, और डेटा एक मैसेज डाल देता हूँ कि डेटा प्रिंटेड डन। डेटा डेटा इज written in test.txt file. Okay, so let's run the code, run as application, and data is written in text file. चलो कोई एरर नहीं आया तो that means everything's fine. Let's check the file. So here we have a test folder, और इसमें क्या आ रहा है, लेकिन जीरो आ रहा है। मैं इसको ओपन करूंगा तो शायद ब्लैंक मिले। क्या कहते हो भाई, ब्लैंक क्यों आ रहा है ये? कल हमने कुछ एक्स्ट्रा भी किया था इसमें। सर स्काई वैल्यू प्रिंट हो रही थी। हाँ आज तो वो भी नहीं हुई। अगर मैं फाइल आउटपुट क्लास यूज करूँ, हमने भी सेम इतना किया था, है ना। हाँ सर। अरे क्लास ऊपर हो गई, नीचे क्लास ऊपर हो गई। इतना क्या था, हमने डेटा राइट करा था, हो गया था। हमने कल डेटाबेस में एक जब हाइब्रिड कर रहे थे, हमने एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा यूज़ की थी, कल मैंने बताया हुआ था वो चीज़। वो करने पर चीज़ें बीच में अटकती नहीं है, वो सीधा जाके सिंक में डेटा राइट हो जाता है। क्या था वो, एनीवन? सर फ्लश। हाँ, फ्लश। ये कहाँ गया डेटा, पाइपलाइन में, जो भी बफर एरिया कह रहे हो वहाँ चला गया ये। उसने बफर कर लिया, बोला कि अभी मे बी कुछ और डेटा पास करने वाले हो, तो वो वेट कर रहा है। तो फाइल लेटर का रेफरेंस यूज़ करके हम करेंगे फ्लश, बस खत्म। ये कह रहा है भाई अब मेरे पास इतना ही डेटा था, इसको सीधा फ्लश कर दो सिंक पर, जो अभी हमारा सिंक है। सिंक यहाँ पे क्या है, टेस्ट डॉट टेक्स्ट। एप्लीकेशन करा, ओके डन। एक बार चेक करते हैं, अब देखो फाइल में 1 KB साइज आ गया है ना। अब अगर फाइल को ओपन करूंगा तो बोलेगा इट हैज़ बीन मॉडिफाइड।
रिलोड यस, और ये आ गया SOH। ठीक है, ये इसके कोड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो नेवर माइंड, हमारे पास एक मेथड और है राइट का, जिसमें हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जैसे विपिन पास कर देते हैं। अब राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, और डेटा फिर से राइट हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, फिर बोल रहा है दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड, वांट टू रीलोड, यस, एंड देयर वी गो। सो दिस लुक्स हैंडी राइट, कि अब हमारे पास एक क्लास है और उस मेथड है जो डेटा को ऐसे प्रिंट कर सकता है। करेक्ट यस सर। हो गया। बस डोंट फॉरगेट कि अगर आपका डेटा प्रिंट नहीं हो रहा तो आपको फोर्सफुली उस डेटा को उस पाइपलाइन से बाहर निकल के या फिर उस बफर मेमोरी से बाहर निकल के सिंक तक पहुंचाना है। तो दैट मेथड इज फ्लश मेथड। खुशबू, इसमें कुछ आया समझे क्या करा हमने? यस सर। ठीक है, तो जैसा हमने ये किया है उसी तरीके से सेम जो बाकी की क्लासेस थी, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ऐसे यूज करिए, बस क्लासेस का नाम चेंज कर दिया है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो अब एक काम करते हैं, जो हमने डेटा राइट किया है इस फाइल पर, यहाँ पर, सॉरी यानी इस टेस्ट फाइल में, इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। पर बिफोर दैट लेट मी पुट दिस ऑन पेंट, कॉपी, पेंट, पेस्ट इट, देन टेस्ट फाइल। इसी मैं इसको फिक्स कर दूंगा। ठीक है, सो इट्स डन। नाउ हाउ टू रीड फ्रॉम द फाइल, सो स्टेप्स रिमेन सेम। कुछ और ट्राई करेगा, हेल्प करिए मेरी। अभी मेरे से फाइल राइटर क्लास यूज करिए, मैं बना रहा हूँ एक फाइल रीडर टेस्टर। ठीक है, ये रही एक क्लास, तो ये करते हैं खाली। तो पहला स्टेप क्या था, कुछ रिकॉल कर पाओगे? सर पहले पाथ देना है। करेक्ट, चलो मैंने पाथ पिक करा और पाथ एंटर कर दिया। तो हमारे पास है test.txt, इस फाइल से हमें रीड करना डेटा, राइट? नेक्स्ट यस स्टेप सर। क्या है? सर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो बाद में आएगा, और पहले तो क्लास यूज करना पड़ेगा। यस सर, बट उसके लिए हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन ही यूज तो ट्राई कैच बोलो, एक्सेप्शन नहीं, ट्राई कैच हुआ। करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर दिए जाते हैं। अब इसमें सेकंड स्टेप डालेंगे, अम, कि जो भी इसका नाम है वो पास करना है। तो मैं ये लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको। तो दिस टाइम वी विल इंस्टेंशिएट फाइल रीडर क्लास, है ना? यस सर। रीडर क्लास एंड pass file path into its correct constructor. So we will say file reader or reference, then new, then reader, and we will pass file path, जो टेक नाम लेता है। Okay, this is done. What's the third step? देख के बता दो। That is सर रीड के लिए अलग से मेथड होंगे ना, जब राइट के लिए या फिर रीड के लिए अलग से? राइट के लिए कौन सा मेथड है? राइट करना है तो राइट मेथड है ना, राइट। है ना? तो यस जब, सर, रीड के लिए फिर रीड मेथड। हाँ बस सिंपल है यार, जावा ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए सिंपल है, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
तो यस वी हैव टू यूज रीड मेथड। ओके। ओके अब देखो यहाँ पे रेफरेंस फाइल रीडर डॉट रीड ये आ गया। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन अस सो ओके थैंक यू खुशबू। अब शुभ आप बताइए कि हमारे पास रीड सारे बहुत सारे मेथड हैं तो इसमें से कौन सा यूज करें हम। फिर अभी अपने पास ऑप्शन पहला वाला ही है, कंफ्यूज मत हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे हाँ बोला सर, रीड पहले के अंदर वाला। आपको एरे देने हैं, कैरेक्टर बफर, कैरेक्टर के साथ बफर, ऑफसेट और लेंथ। ये तो कुछ सेंस ही नहीं कर रहे, हमें तो बस ऑलरेडी फाइल ये सब पड़ी हुई है, हमें तो बस रीड करना है तो पहला ही जाएगा। अब इसके संग इशू है यार। देखो अब हम इसको रीड तो कर लें पर ये डेटा देता कहता है डेटा इन बाइट। ये सेम कल का सीन क्रिएट हो गया। समझ रहे हो क्या होगा इससे। यस सर। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो बाइट डेटा देगा ये। तो एक काम करते हैं अपनी फाइल को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ये जो स्टार्टिंग में एस ओ एच लिखा है इसको हटा देते हैं ताकि एटलीस्ट देखे क्या रीड करने वाले हैं। तो बीपी रीड करना क्या पहला कैपिटल क्या है इसका बी। तो रन एज एप्लीकेशन क्या निकल गया है 66। समझ गए क्या है ये 66। रुको बताना मत, रुको होल्ड करो। कुछ वो एसकी कोड क्या होते हैं पढ़ा है। ये सर ये 66 सर उनके वैस की कोड है। हाँ बिपिन। राइट राइट विपिन का नहीं सर है सिर्फ बी का है। हाँ सॉरी सर। विपिन गुस्सा हो सर जाएगा। स्मॉल का दूसरा होता है और कैपिटल का दूसरा होता है। विपिन बोलेगा मैं हूँ नहीं तो मेरा नाम यूज करा जा रहा है। अच्छा कैसे देखो, तो कैपिटल 65 है ए है ना और बी का है 66। तो व्हाट हैपेंड, अगर आप यहाँ से ध्यान से इसके डॉक्यूमेंट पढ़ोगे गाइस सी आई एम गोइंग टू ओपन रीड मेथड। यार ये नीचे आ जा रहा है इसको फिक्स करना पड़ेगा। एनीवेज तो क्या लिखा है यहाँ पर, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर। शुभम कल जब हमने मेथड पढ़ा था रीड वाला वो क्या कर रहा था, एक बाइट रिटर्न कर रहा था राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक सिंगल कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है पर वो भी उस फॉर्मेट में नहीं जो हमें चाहिए, इंट में। एस्की कोड देगा हमको। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रिटर्न टाइप है उसको करेंगे टाइप कास्ट। ठीक है भाई ये चाहिए, तो हम काम करते हैं जो भी डेटा आ रहा है डेटा इन बाइट इसको कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर टाइप में क्योंकि हमें तो कैरेक्टर में चाहिए। और इंट जो रीड मेथड है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर रीड कर पाता है। तो कास्ट करने के लिए ब्रैकेट लगाओ और अंदर जिस टाइप का डेटा हमारे को चाहिए और जैसा उस फाइल के अंदर है उसका। ये नहीं कि यहाँ पे मैं लॉन्ग लिख दूँ लॉन्ग चल जाएगा या फिर बुलियन लिख दिया बुलियन चल जाएगा। हमको पता है कि इस फाइल के अंदर सारे जो भी स्ट्रिंग है वो सब कैरेक्टर टाइप के हैं तो कैरेक्टर में हम इसको कास्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे लिखते हैं डेटा इन कैरेक्टर और इसको कॉपी करके यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले ये हमें इसका एस्की कोड देगा और फिर बाद में इसको कन्वर्ट करके या फिर कास्ट करके एक्चुअल वैल्यू देगा। पर अगेन वन थिंग, सिंगल कैरेक्टर। तो राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशन और आ गया कैपिटल बी। विपिन समझ में आया क्या हुआ। कहाँ गए भाई, खुशबू आप बताइए कास्टिंग सर क्यों आगे। करी। ठीक है अब ये बताओ चलो विपिन आए कि नहीं आए अभी तक। सर विपिन नहीं है क्लास में सुबह। अच्छा क्लास में ही नहीं गए तयोला नहीं दिखा तो रहे हैं। सर इनका नाम विपिन थोड़ा है। अरे सॉरी यार विपिन करते विपिन बोल गया सॉरी। शुभम अरे शुभम तुम ही हो भाई यस सर। बोलो। हाँ सर, मेरे को लगा मेरे को पिन तो है ही नहीं, मैं भी सोच रहा था। तो गुस्सा क्यों हो गए, बोलते सर मैं हूँ। नहीं नहीं सर, मेरे को लगा शायद विपिन आया होगा बीच में, मैंने नहीं देखा हो। अरे यार वो नाम पढ़ के दिमाग में वही निकल गया मेरे से सॉरी। हाँ जी शुभम। हाँ सर, ये तो आपने कल भी बताया था सर, टाइप कास्टिंग वाला, ये समझ में आ गया राइट सर। तो इसमें डाउट नहीं है ना। नहीं तो सर। अब आप मुझे हेल्प करिए इस एग्जांपल में क्योंकि अभी हम एक कैरेक्टर रीड कर पा रहे राइट। मुझे यस चाहिए सर। पूरी फाइल का डेटा। अब फिलहाल अभी एक ही नाम है तो यस सर। गुस्सा हो जाएगा मनन, मनन को भी ले आते हैं ना। ठीक है अब ये दो लाइंस मुझे चाहिए अपने कंसोल पर। सो मैं इसका एक टेस्टर बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टेस्टर 2। अब स्टेप्स क्या करना होगा मुझे कि मैं पूरी फाइल को रीड कर पाऊँ। चाहे तो अपना एग्जांपल जो अपने बनाया था उसका रेफरेंस ले लो पर मुझे देख के बताओ फटाफट से। चलो फटाफट नहीं आराम से बताओ कोई जल्दी नहीं कि कैसे पूरे डेटा को रीड किया जाए। ठीक है खुशबू अभी तक हमने एक कैरेक्टर रीड किया वो समझ में आ गया ना। नाउ वी विल ट्राई टू रीड यस सर। ऑल कंटेंट फ्रॉम द फाइल। जो भी आएगा हम इसको
कंसोल प्रिंट करने की। यस, ट्राई करिए सर शुभम। मेरे को आंसर करना है सर। हाँ जी, आपको करना है, शुभम। जो मैंने कल किया था सर, मैंने तो वाइल लूप लगाया था, मतलब मैंने जो देखा था उसके अकॉर्डिंग वाइल लूप लगा के सर वो पूरी लाइन रीड कर पा रहा है। ठीक है, तो बताओ कैसे करना है। देखो, वाइल लूप ही यूज़ करने वाला हूँ मैं। वो सबसे सिंपल तरीका है। मैं लगा लिया वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप हो गया। क्या कंडीशन होगी वाइल के अंदर? हेलो हाँ जी, सर, बोलिए आवाज बोलिए। आ रही सर? मैं वेट बोल कर रहा रहा था हूँ। वाइल कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू -1 आएगा सर। डाटा इन कार में सी बेसिकली ठीक है। डेटा इन कर नॉट नॉट इक्वल्स इक्वल टू 1, ऐसे। -1 आ जाएगा माइनस सर। 1, ठीक है, -1 हो गया। उसके बाद सर इसका -1 नहीं होगा तो सर ये डाटा को दोबारा रीड करेगा सर, मतलब पहले इसमें सर यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे ना, नहीं? हाँ तो सर अब दोबारा रीड करेगा ना फिर उसको, राइट लूप वाला रीड चलाएगा करेगा। और उसको दोबारा बार बार रीड करेगा जब तक -1 पे नहीं आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और हमें ये तो प्रिंट कराना है नहीं, इसे हटा देते हैं, है ना। यस सर। और इसको 2 कर देते हैं। और इसको भी 2 कर देते हैं। बस, यहाँ भी 2 कर देते हैं। क्या बोलते हो, चलेगा अब? ट्राई करते हैं। हाँ। ठीक है, लॉजिक में समझाता हूँ। लॉजिक में समझ में, -1 ही क्यों रखा? सर क्योंकि 0 तक तो वो काउंट करेगा ना सर करेक्टर्स को। अरे भाई, तो इन्फिनिटी पे चला गया। देखो, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आ गया बहुत सारे। मैं बोल रहा भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हो। सर जो ये वाली रीड रीड वाले है ना, ये इन डाटा टाइप वाली रीड वाला जो हमने लगाई है कमांड, हम्म। ये सर उसके लूप के बाहर आएगी सर शायद। कौन सी वाली? ये फर्स्ट ये लाइन वाली, 23। हाँ सर ये वाली लूप के बाहर आएगी। अच्छा। और सर जो हम कास्टिंग कर रहे हैं ना सर, हम्म। वो लूप के अंदर आएगा। ठीक है, तो वैसे कर दिया हमने, है ना। कास्टिंग अंदर है, लूप बाहर है। चलो एक काम करते हैं, शुरू से कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो गई होगी शायद तुमको भी। सर सर कास्टिंग वाला और जो रीड वाला, जो हम रीड कर रहे हैं और कास्टिंग कर रहे हैं, हम्म। सर वो लूप के अंदर आएगा, अच्छा, वाइल लूप के। चलो ठीक है। मतलब -1 क्यों रखा, पहले वो समझाता हूँ। तो खुशबू, आप ही सुनिएगा ध्यान से। हम क्या यस कर सर। रहे हैं, हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, फाइल रीडर, है ना। सॉरी, फाइल रीडर यस। नहीं, रीड मेथड इसका जो भी है, रीड। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं फिर से। यहाँ लिखा रहा है रीड्स अ सिंगल करेक्टर। ओके, दैट्स फाइन, हमने वो प्रैक्टिकली चेक कर लिया। अब रिटर्न क्या है इसका? इट, व्हाट इट सेज, returns the character what it reads, or -1 if the end of the stream has been reached। डॉक्यूमेंटेशन खुद कह रहा है कि या तो ये एक कैरेक्टर देगा, एक कैरेक्टर जो कि इसने रीड किया होगा, या फिर -1 देगा अगर डेटा आपका खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल -1 आ रहा है, बिकॉज डेटा खत्म हो गया। जो भी हमारी फाइल है, इसने रीड करा पहले BIPIN, देन आया MANNAN, एन जो लास्ट एन है, इसके बाद डेटा हो गया खत्म। जैसे ही फाइल रीडर का रीड मेथड इसको रीड करेगा, फिर बोलेगा डेटा पे खत्म हो गया, तो एन के बाद रिटर्न करेगा -1, उसके पहले ये एक ही कैरेक्टर रिटर्न करता जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग -1 एज कैसे कंडीशन। ये किसी ने सोचा नहीं है, ये ऑलरेडी इन लोगों ने, क्योंकि सी व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीड और राइट समथिंग इनटू अ फाइल, तो वहाँ पे हमें कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा, कि कहीं जाके हमें अपना पूरा फ्लो, कि कोई कोई भी डेवलपर या कोई भी प्रोजेक्ट एक एक कैरेक्टर रीड करके लाएगा तो जरूर। दैट्स काइंड ऑफ इनएविटेबल, वो तो होना ही होना है। थिंग इज कि जब नेगेटिव हम एक, जब भी एक मेथड बनाओ, उसको इतना सेंसिबल बनाओ कि हम अगर डेटा रीड करें तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेकिंग पॉइंट देना पड़ेगा। इसी तरह हम रियल वर्ल्ड में भी अपने मेथड्स या जो जो यूटिलिटी क्लास बनाते हैं, उसका लॉजिक डालते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसको चेक करो, उसको उसको एक ऐसी कंडीशन में लेके जाओ हम ब्रेक भी कर सकें। तो वो ट्राई करते हैं। तो नेगेटिव हमारे पास ब्रेक कंडीशन आ गई कि हम एक लूप चलाएंगे और इसको रीड करेंगे बार बार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर एक पहले बनाता हूँ इंट डेटा इन बाइट, और इसको कर देते हैं डिक्लेयर कर देते हैं बस। फिर एक वाइल लूप लगाते हैं, सिंपल वाइल लूप, और जैसे कि कंडीशन शुभम ने बताया वो ट्राई करते हैं। पर मैं यहाँ पे कंडीशन यहाँ नहीं डालूंगा, मैं जो कंडीशन वाइल की बात करती है मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट करता हूँ। ट्रू, मैंने कह दिया कि भाई ये वाइल लूप चलेगा इन्फिनेटली, इसमें अब कोई कंडीशन नहीं है, वाइल चलता ही रहेगा। मैं इसको ब्रेक करूंगा लूप के अंदर, तो क्या लिखूंगा, डेटा इन बाइट है, फिर जो रीडर है, रेफरेंस है फाइल रीडर, इसको रीड करूंगा, फाइल रीडर डॉट रीड। इसने रीड करा, इसको ध्यान सुनिएगा, इट विल रिटर्न मी अ नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, ये एक इंट वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, क्योंकि इंट ऑलरेडी मेरे पास है, तो डेटा इन बाइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे रीड कर दिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ डेटा इन बाइट इक्वल इक्वल टू -1, अगर -1 मिलता है रीड करने के बाद, तो सीधा यहाँ से इसको कर दे लूप को ब्रेक। दिस इज वन मोर जावा रिजर्व कीवर्ड। अगर ब्रेक नहीं होता है तो सिस आउट लगाओ, और जो डेटा इन बाइट है उसको कास्ट कर दो। तो मैं इसको इनलाइन में कास्ट कर सकता हूँ, प्रिंट करते टाइम यहीं पर ही क्या लगा दो, खत्म। लॉजिक समझ में आया, छोटा सा लॉजिक है। वेरिएबल बाहर रखा, इस वेरिएबल में बार बार हम डेटा रीड कराएंगे, और लूप चलता रहेगा इन्फिनेटली, जब तक डेटा है चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव बनाया, इफ ब्लॉक में चला जाएगा और लूप को ब्रेक कर देगा। अगर -1 नहीं आ रहा तो मतलब डेटा है, और 1 बाय 1 ये एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट अप्रोच, पर ये कैन दिस कुड बी अवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग दिस। तो रन एज एप्लीकेशन, और देखो ये आ गया बन के, सारा डेटा आ गया। अब मल्टीपल लाइन्स में आ रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग नेक्स्ट लाइन हियर प्रिंट एलन, तो इसको बस एलन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब ये सब कुछ एक लाइन में प्रिंट कर देगा, जैसा आपकी फाइल में वैसे प्रिंट कर देगा। ये आ गया, दैट्स इट। शुभम, जो तरीका आपने यूज़ किया वो भी दैट्स फाइन, और ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल वेज है ठीक है सर। काम करने के, तो जो बेस्ट लगे आसानी समझ में वो अप्लाई कर सकते हो आप। कुछ बात बताइए, कुछ आया समझिए क्या हुआ यहाँ पर। यस सर। अरे यस कह रहे हो, सही में समझ आ गया क्या, या फिर जस्ट यस कहना है। देखो नहीं आया तो मना कर सकते हो, कोई बात नहीं, रिपीट कर लेंगे, पर बाद में मत कहना कि मुझे समझ नहीं आया। अभी मना कर दो, अच्छी बात है। तो ये डेटा यहाँ पर था, और ये फाइल ये वाली थी। सर हाइबरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है बस, और कुछ क्या नहीं। दिक्कत आ रही है उसमें। सर वो हाइबरनेट आपने समझाया, उसके बाद हमने सोचा कि रिटर्न से मैं वीडियो देखूंगी तो फिर समझ में आ जाएगा थोड़ा, हम्म। उसके बाद ही दिमाग से उड़ रहा है अभी। ये तो उड़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ नई टेक्नोलॉजी अब समझो ना, अगर अभी से उड़ेगा तो आगे की तो और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अभी तो हाइब्रिड में बहुत बेसिक स्टेप किया है, पर चक्कर क्या है वो बहुत ज़्यादा डेटा हो गया, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो जब हम आज पढ़ेंगे तो मैं ज़्यादा अभी इसमें चीज़ें कवर नहीं करने वाला, स्टार्टिंग में मतलब। ओके सर। एक एक दिन और है हमारे पास, जो आज का दिन है, आज भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हाइब्रिड का, जो हमने करा है उसी को रिपीट करेंगे एक दो बार, और ओके आपके पास सैटरडे संडे रहेगा उन चीज़ों को और अच्छे से एब्जॉर्व करने का। 13 से फिर ओके थोड़ा सर। सा में और फीचर ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो आज ओके भी सर। बस हल्के हल्के करेंगे ताकि टाइम लो आप। ओके शुभम, आपने हाइब्रिड स्टार्ट करा, हाइब्रिड में कुछ भी डेटा वेटा का। नहीं सर, अभी हाइबरनेट वाली सर अभी आज भी दिन में करना था मेरे को, वीडियो देख के कल एक बार वाली वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी सर। अरे कर लेना, वरना फिर चीज़ें छूट जाएंगी तो छूट जाएंगी। नहीं नहीं सर, मैं जो वाला अभी साथ में करवा रहे हो तो मैं साथ में करने की पहले पहले वो कर रहा हूँ, हाँ फिर सर हाँ के पीछे वाला वो रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ, वही ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ पहले उसको कंप्लीट करो, और फिर पुराना पैरेलली या बाद में करो। गाइस देखो ठीक है ये सर। चीज़ याद रखना, अभी सभी ये कहते हैं, बाद में समझ में आता है कि कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करना है, ठीक है, याद रखो बस। बाकी यस सर। आप लोग अब कॉलेज ख़त्म कर चुके हो तो आपको पता होगा कि अब लाइफ कैसी होती है आगे। तो कॉलेज के बाद लाइफ है ना बहुत ख़राब हो जाती है, तब ज़िंदगी को चैन नहीं मिलता, है ना। हाँ तो सर सब वो तो एक ही है। काम करना है आप लोगों को, पढ़ना है और फिर कमाना है, और मज़े करने हैं, कमा सको तो अच्छे से, वरना फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर बुरा है तो और वर्स्ट हो जाएगा, अच्छा है तो बुरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं होगा जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे। तो डेली के 8-9 घंटे पढ़ने हैं भाई, सभी को। मुझे ही पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, मुझे भी सरवाइव करना आईटी में, तो मुझे पढ़ना पड़ता है। टेक्नोलॉजीज आ रही है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वरना फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस लाइन में तो पढ़ना पड़ना है, तो जितना टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के फ्यूचर के लिए, सभी के फ्यूचर के लिए।
ओके, एनीवेज ज्ञान बहुत हुआ, वापस आते हैं इस पर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस। सो यहाँ पर राइटर क्लासेस हमने देखे, फाइल राइटर, और इसमें यूज का रीडर क्लास। इसमें एक तरीका और आप थिंक अबाउट कि यहाँ पे ये जो तरीका हमने यूज किया, एक काइंड ऑफ वर्स्ट वे है। वर्स्ट क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? वर्स्ट इसलिए क्योंकि एक एक डेटा हम सिंगल बाइट से रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? एक एक बाइट राइट हो रहा है। थिंक अबाउट, यहाँ पे अगर ये फाइल बहुत बड़ी होती, इसमें कम से कम 2-3 मिलियन कैरेक्टर्स होते, उसको मैं प्रिंट करता, तो दैट मीन्स ये जो लूप, एक्सक्यूज मी, जो ये लूप है ये मिलियंस टाइम्स चलता, तो कितना बेकार आउट का परफॉर्मेंस आता। तो इम्पैक्ट समझ पा रहे हो आप लोग क्या होगा? यस सर। मतलब एक आप लूप को 2 मिलियन टाइम, मतलब 1 मिलियन टाइम छोड़ दे रहे हो, हालांकि बहुत फास्ट होता है, नैनो सेकंड से काम होता है, मिली सेकंड में भी नहीं, नैनो सेकंड में काम होता है, जैसे क्लिक या फट से रन करता है। पर यही काम 10 लोग करें, रीड करना मिलियंस टाइम, तब इम्पैक्ट करेगा। यही काम अगर 100 लोग करें, 100 लोग 1 मिलियन फाइल को रीड कर रहे हैं, ओ माय गॉड, भाई परफॉर्मेंस तो खत्म, वही सर्वर वहीं बैठ जाएगा, वो तो बफर ही करता रह जाएगा और अगली रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इन सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास होती है बीच में, बफर क्लास, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बफर हमें एक मेथड देता है बढ़िया सा, थोड़ा सा मैं इसको बहुत लास्ट टाइम पहले यूज़ करते याद नहीं आ रहा, ट्राई करते हैं, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। फाइल एडिटर टेस्टर, कुछ वो रिक्वायरमेंट समझ में है कि हम थर्ड क्लास पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही वर्स्ट अप्रोच है। मैंने कहा कि ठीक है, काम हो रहा है, छोटी फाइल है 2-4 लाइन की, तो रीड कर लो, पर वहीं पे अगर मिलियंस यस ऑफ सर। लाइन्स आ गई तो इम्पैक्ट करेगा परफॉर्मेंस से बहुत तगड़े से। तो फिर हम क्या करेंगे, जो फाइल रीडर है इसको रैप कर देंगे। एक और क्लास आती है बफर रीडर, देखता हूँ, ये मैंने बहुत पहले यूज़ की थी, थोड़ा बहुत याद आया तो करते हैं, वरना फिर नेट यूज़ करेंगे, गूगल न्यू बफर रीडर, और यहाँ पे रीडर क्लास डाल देंगे ऐसे। पहले हमने क्या करा, फाइल लिया, सॉरी फाइल का पाथ लिया, वो पास कर दिया फाइल रीडर में, यहाँ पे आ गया। तो अब फाइल रीडर के पास पाथ है और प्लस इसके फीचर है। फाइल रीडर में दिक्कत क्या है, इसके पास जो मेथड है रीड, वो बहुत ही बेकार है यार। मतलब क्या कर रहा है वो, एक एक कैरेक्टर रीड कर रहा है। क्लियरली इट्स डॉक्यूमेंटेशन सेज कि रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर। भाई एक एक कैरेक्टर रीड करोगे तो कब जाओगे आखिरी तक? और रियल वर्ल्ड में तो मिलियंस ऑफ लाइंस होती हैं। मेरे पास लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंट आया था, उसमें 3 मिलियंस लाइंस थी। तो ये जो काम है ये कभी पुराना नहीं होता, फाइल्स को रीड और राइट करना। कुछ भी आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाके फाइल पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपको पैकेज अच्छे से आना चाहिए। आईओ पैकेज इज क्वाइट ओल्ड पैकेज, जावा की स्टार्टिंग से आ रहा है। और उसके बाद एक नया पैकेज रखिएगा, जावा डॉट न्यू, कल मैंने शायद बताया भी था, एन आई ओ न्यू पैकेज, उसमें लेटेस्ट क्लासेस ऐड की गई हैं, जो भी परफॉर्मेंस इन क्लासेस में डिग्रेड हुई है वो यूज़ होती है। तो मोर लेस सेम है, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा क्लासेस के नाम पे चेंज आने वाला है, क्लासेस के नाम भी सेम है, बस उनको यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, फाइल रीडिंग और राइटिंग, ये बहुत जगह यूज होता है। आप किसी भी लेवल पे चल जाओ, बिगनर से लेके एक्सपीरियंस तक, वहाँ पे आपको ये फाइल्स पे काम करना ही होगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको काम करना। तो बेटर है अप्रोच क्लियर रखिए, पहला चाहिए पाथ, दूसरा हमें क्लास डिसाइड करनी है कौन सी यूज़ करनी है, देन कौन सा मेथड डिसाइड करना है। अभी तक जो हमने मेथड यहाँ यूज़ किया था दैट वाज रीड मेथड, बट ये बहुत ही इसका वर्स्ट परफॉर्मेंस है। तो हमने क्या करा, एक और क्लास सेट करी, बफर रीडर। अब इसकी अच्छी बात क्या है, ये हमें एक मेथड देता है, बफर रीडर डॉट रीड लाइन, देख रहे हो, रीड लाइन। तो बफर रीडर के तक मेथड है रीड लाइन। ये क्या काम करता है, एक बार चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। देखो पहली लाइन कितनी अच्छी है, रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये पूरी एक लाइन को रीड कर लेता है एक बार में, ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर रीड कर रहा है, पूरी लाइन को रीड करेगा। और ऐसे नहीं कोई एक वर्ड को रीड करेगा, पूरी लाइन। अब उसमें चाहे 5 कैरेक्टर्स हो या फिर 500 हो, 5 मिलियन हो, एक लाइन मतलब एक लाइन एक बार में रीड कर लेगा। कंडीशन क्या है इसको टर्मिनेट करने की, जैसे रीड में कंडीशन थी -1, इसमें कंडीशन क्या है, अ लाइन इज कंसिडर टू बी टर्मिनेट बाय एनी वन ऑफ द लाइन, इधर स्लैश एन जो नेक्स्ट लाइन में चल जाए, या फिर उस फाइल के अंदर स्लैश आर पड़ा हो, या फिर कैरेज रिटर्न कर दे इमिडिएटली। कैरेज मतलब डेटा रिटर्न कर दे, आखिरी का जो कैरेज होते हैं। अब रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द कंटेंट्स ऑफ अ लाइन नॉट इंक्लूडिंग एनी लाइन टर्मिनेशन लेटर, और null if the end of the stream has been reached। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, null की। तो null यूज करने से पहले एक बार सिंपल रन करते हैं इसको, इतना रूट करा, ये हमें क्या देता है, स्ट्रिंग, डेटा इन स्ट्रिंग। और अब सिस आउट यूज करो और डेटा इन स्ट्रिंग यूज करो, ठीक है, सिंपल। अब राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, और एप्लीकेशन,
एक बार में आ गया, देख रो, अब करेक्टर नहीं, पूरी लाइन रीड हो रही है। अभी अगर इस विपिन के नाम को मैं मल्टीपल कर दूं यहाँ पर, फाइल सेव कर दी, अब रन करते हैं तो क्या होता है, रीड कर रहा है, दैट मीन इट्स ट्रू, डजेंट मैटर हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन योर फर्स्ट लाइन और एनी लाइन, इट विल रीड इट, एक बार में एक लाइन को रीड कर सकता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और दिस इज़ वन गुड वे कि आप एक लाइन रीड कर पा रहे हो, अगर आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, सो दिस इज वन ऑफ द गुड वे। ठीक है। अब इशू वही है कि अगर मेरे पास मल्टीपल लाइंस हैं, तब क्या होगा, ए बी सी एक्स वाई जी पी क्यू आर, है ना, हेलो, वेलकम, हाय। अब कैसे काम करेंगे, अब मुझे पूरी फाइल रीड करनी है, तब हम यूज़ करेंगे इस मेथड का जो कंडीशन है कि एक एक लाइन रीड करता हुआ जाए, जैसी रिटर्न हो नल, दैट मीन्स एंड ऑफ द स्ट्रीम हैज़ बीन रीच, आखिरी पे आ गए हम लोग, तो इसको एज ए कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, सेम जो हमने तरीका यूज़ किया था पिछले एग्जाम्पल में, वाइल लूप चलाने का और फिर इसको ब्रेक करने का, वो यहाँ से करेंगे। तो ये टेस्ट 4 बना दिया मैंने, सेम काम हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये रीड लाइन मेथड है, इसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं, टू रीड एज स्ट्रिंग फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पे सिंक नहीं है, मेरे पास सोर्स आ जाएगा। सोर्स मतलब जहाँ से डेटा रीड कर रहे हैं, सिंक मतलब जहाँ पे डेटा हम सेंड कर रहे हैं। कॉपीड, पेस्टेड, यहाँ पे राइट रीड एज बाइट ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ तो बाइट ही कर रहे हैं, यहाँ पे बाइट नहीं, एक्चुअली कैरेक्टर दे रहे हैं, रीड एज इन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीड फ्रॉम द फाइल, पर हमें बहुत सारे लाइन्स रीड करनी है। तो एक वेरिएबल जैसे लास्ट टाइम बनाया था वैसे बनाते हैं, मैंने इसको ब्लैंक कर दिया इनिशियली, इसको रखेंगे लूप से बाहर, अदरवाइज उतने सारे वेरिएबल बन जाएंगे। अब बनाएंगे वाइल लूप का सिंटैक्स, और इस लूप को चला देंगे इन्फिनेटली। जब भी इन्फिनेट लूप चलाओ, मेक श्योर यू आर ब्रेकिंग इट, अदरवाइज प्रोग्राम गया आपका, कोड वहाँ जाती है, फिर लूप में चल जाएगा और चलता रहेगा लास्ट मोमेंट तक। बस उसके बाद क्वाइट सिंपल, जो डेटा इन स्ट्रिंग है इसको इनिशियलाइज करेंगे किससे, बफर रीडर का जो मेथड है, बफर रीडर डॉट रीड लाइन, ये आ गया। अब रीड करते ही पहला काम हम चेक करेंगे कि पहले चेक तो करें उसमें डेटा है कि नहीं, तो डेटा इन स्ट्रिंग इक्वल्स टू नल, अगर ये नल है तो लूप को वहीं ब्रेक कर दो, सेमीकोलन, अदरवाइज अगर डेटा है, इफ के अंदर नहीं गया तो मतलब उसके अंदर डेटा है, इसे सेट कर दो डेटा इन स्ट्रिंग। तो अब ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा और जितनी लाइन से उतनी बार लूप चलेगा। आगे done. So that's how we read all contents from a file by using file reader class. I think ये मैंने क्लास फर्स्ट बैच में भूल गया था, तो मैंने यहाँ कवर कर लिया। ठीक है, एक ही बात है, इतना अगर आता है तो ये भी आराम से समझ जाओगे। So this is what we did. Okay, and this is what we have in our source file. .txt. ठीक है, any question, doubt, कुछ और query, anything you guys can ask or tell me, otherwise we are done with IO package. सर जो ये आप जावा फाइल कॉपी करते हो सेम बिल्कुल एज इट इज, वो कैसे करते हो शॉर्टकट से, एक बार ये बता दो मेरे को। वो सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल वी है, जैसे ये जो फाइल सिलेक्टेड है, जैसे ये 4 है, मुझे इसको कॉपी करना है, तो पहले मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ, फिर कंट्रोल वी दबाता हूँ, तो यहाँ नेम कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ऑलरेडी 4 से पड़ी हुई है, तो इक्लिप्स सजेस्ट करता है ये करना, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जो भी नाम है दे दिया और ओके कर दिया, सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। जैसे 4 है, मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा और ओके कर दिया, 5 आ गया, सेम कॉन्टेंट इसके अंदर होगा। काफ़ी हैंडी, लेकिन आप तभी करना जब चीज़ें
समझ में आ जाए ना। मुझे तो यस अपना सर। टाइम बचाना होता है, तभी ये सब करना होता है। पर आप लोगों को टाइम नहीं बचाना, आपके पास बहुत टाइम है, आई बिलीव। ठीक है guys।